अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो बड़े नाम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लामार्क्स और डार्विन्स। इनकी थ्योरीज जो थी वो एवोल्यूशन में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने लामार्क्स थ्योरी को डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियो में, तो अब आज की वीडियो में हम डार्विन्स थ्योरी को डिस्कस करेंगे। डार्विन proposed that species can change over time, that new species come from pre-existing species, and that all species share a common ancestor. In this model, each species has its unique set of heritable genetic differences from the common ancestor, which have accumulated gradually over very long time periods. Repeated branching events in which a new species split off from a common ancestor produced a multi-level tree that links all living organisms. Darwin referred to this process in which group of organisms change in their heritable traits over generations as descent with modification. Today we call it evolution. Darwin's sketch above illustrates his idea showing how one species can branch into two over time and how this process can repeat multiple times in the family tree of a group of related species. यानी कि ये बता रहे हैं कि जो डार्विन्स की थ्योरी थी वो टाइम पे डिपेंड करती थी और मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करती थी कि वो टाइम टू टाइम वो बता रहा था कि चेंजेस आते हैं हमारे जो है वो ह्यूमन बींग्स में भी, और हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें भी चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम। बस ये होता है कि एंसेस्टर्स की जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो सब में होती हैं। नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पॉइंट्स पे। ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि डार्विन्स की थ्योरी को हम नेचुरल सिलेक्शन का भी नाम देते हैं कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। स्पीशीज कीप ऑन इवॉल्विंग और चेंजिंग विद टाइम एज द एनवायरनमेंट चेंज, द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑल्सो चेंज एंड दे अडॉप्ट द न्यू एनवायरनमेंट। दिस फिनोमेनन ऑफ चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज पर द नेचुरल रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. As per Darwin's theory, only the superior changes are naturally selected and the inferior ones are eliminated. Thus, not all adaptations contribute to progressive evolution. For example, people living in tropical countries have more melanin in their bodies to protect them from the sunlight. Third point आ जाता है कि almost all organisms share common ancestry with some organism. According to Darwin, all organisms had one common ancestor at some point in time and kept on diverging ever since. His evolutionary theories support the convective theory and divergent theory of evolution. With example, he also studied that the birds of Galapagos Island, Darwin's finches, developed different beaks as per the availability of the food. These proved adaptive radiation. Similarly, he also observed the Australian marsupial, which showed a number of marsupials emerging from an ancestor. यानी कि अब वो अपने पॉइंट्स में जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इन एग्जांपल्स को लेके अपनी थ्योरी जारी की थी। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, एवोल्यूशन इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. He concluded that evolution took place over a very long period of time. As we talk about the time period in evolution, we usually refer to billion of years. The generation of a species from another takes a long period of time. It is a very steady process as the changes and adaptations take a long time to stabilize and give rise to a new species. यानी कि अब ये बात भी हो रही है कि एवोल्यूशन एक बहुत स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि आपको अभी फ़ौरन नहीं चीज़ों में नज़र आता है, ऑर्गेनिज्म में नज़र आता। ये डिपेंड करता है कि कितना जो है वो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हो रहा है, ऑर्गेन्स का यूज़ हो रहा है। इस वजह से वो आराम से जो है वो न्यू चीज़ें अडॉप्ट करते हैं और फिर उनकी न्यू स्पीशीज़ में हमें वो नज़र आती हैं। अब हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 डिफरेंट वेज में हो जाती हैं। वो क्या क्या होती हैं? Natural selection takes place in 4 different ways as follows: variation, inheritance, a high rate of growth of population, and differential survival and reproduction. Variation को अगर हम देखते हैं तो the changes accumulated over a period of time in an organism usually give rise to a new species. यानी कि वेरिएशन में क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म जो है वो यूजुअली राइज करते हैं न्यू स्पीशीज़ को, तो उनमें चेंजेस आपको नज़र आती है, तो आपको वेरिएशन की डेफिनेशन में आ जाती है। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ अ पासिंग ऑन द वेरिएशंस ओवर जनरेशन विच अल्टीमेटली लीड्स टू स्पेसिफिकेशन। यानी कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपकी जो वेरिएशन में चेंजेस आती हैं ना, वो जनरेशन्स में जब आती हैं तो आप उसको कहते हैं कि ये इनहेरिटेडली आ रही हैं, ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस में आ जाता है। अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. This gives rise to more organisms being reproduced by a species than the environment can support. यानी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी इसमें आ जाता है कि अगर जो है वो इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी आपकी, तो इस वजह से क्या होता है कि हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन में आ जाता है।
फोर्थ पॉइंट हमारे पास जो आता है नेचुरल सिलेक्शन में, वो है डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. The superior variation led to the survival of a particular organism and the inferior or negative variation led to extinction. The superior variations are the ones inherited during reproduction. यानी कि अब वो ये बता रहे हैं कि जो अब सर्वाइवल भी कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स का होता है. ये डिपेंड करता है, जो सुपीरियर वेरिएशंस के होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं या वो ज़्यादा तक रहते हैं, और जो हमारे पास इन्फीरियर और नेगेटिव वेरिएशंस के होते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, यानी एक्सटेंट, यानी कि एक लिमिट तक होते हैं. ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन की वेज होती हैं, यानी कि वेरिएशन आ जाती है, इनहेरिटेंस आ जाती है, हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आ जाती है, डिफरेंशियल सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास. कि किस तरह से नेचुरल जो है वो सिलेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी. तो यहाँ पे जो है वो हमने डार्विन्स थ्योरी को ख़त्म कर लिया पूरा टॉपिक को, कि किस तरह से उसने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी. उन्होंने एग्जांपल्स भी दी थी, उन्होंने बताया कि मैंने किस किस बेस पे ये थ्योरी बनाई है, यानी कि एग्जांपल्स दी, उन्होंने वेज बताई कि किस किस तरह से मुझे लग रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का है जो भी है. तो उस वक्त की जब हम बात करते हैं तो एवोल्यूशन में ज़्यादा जाने माने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो डार्विन्स और लमार्क्स की थ्योरी बहुत पढ़ी जाती है. अगर हम सेकेंड ईयर के भी टॉपिक्स को लें तो हमारे पास डार्विन्स और लमार्क्स थ्योरी की एवोल्यूशन में ज़रूर जिक्र है, जिसके क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास फाइनल्स में. तो अच्छा है कि आप उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें. तो यहाँ का टॉपिक हमारा आज ख़त्म होता है डार्विन्स थ्योरी का. होपफुली आपको डार्विन्स थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई है. अभी भी आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, या लमार्क्स थ्योरी से कोई मसला है, या कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूं. नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा.